विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं तुम लोगों के साथ आलोचना कर रही थी तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत चिकित्सा का चक्कर नामक पाठ को लेकर, जिसके लेखक हैं बेढप बनारसी जी। बेढप बनारसी जी ने यहाँ व्यंग्यात्मक दृष्टि से इस लेख को प्रस्तुत किया है। तो पहले पाठ्यांशों में हमको मिला था कि ज़्यादा खाने के वजह से लेखक बीमार पड़ जाता है। उनके मित्र, पड़ोसी एवं सगे संबंधी उन्हें देखने आते हैं। जो आता है कोई न कोई नुस्खा या सलाह अपने साथ ले आता है, पर लेखक की बीमारी में या दर्द में कोई आराम महसूस नहीं होता और उनकी चिकित्सा करने डॉक्टर, वैद्य जी आदि आते हैं, परंतु उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो आगे की पाठ्यांश में हमको क्या मिलने वाला है, आओ देखें। तो लेखक बीमार है, इसलिए वह चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग छाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। तो लेखके जेहेतु बेमार परिए आसिल, बहु दिনৰ পৰা बेमार परि आछे बा पेटर বিষত भुगि आछे, সেইকাৰণে এখন চাৰপাই মানে খাটিয়া ৰছীৰে বনোৱা কি হৈছে তেনেকুৱা এখনত শুয়ে থাকিবলৈ ধৰিলে বা পৰি থাকিবলৈ ধৰিলে। আৰু যেতিয়া দিনত মিত্ৰ মণ্ডলী বা মিত্ৰসকল আহে, তেওঁলোকে কি কৰে, আৰামতকৈ বেছি মানে খংহে তোলায় বা কষ্টহে দিয়ে। আৰু এজন শুভাকাংক্ষী যেতিয়া ওচৰলৈ আহিল, পৰামৰ্শ দিলে, কি বুলি পৰামৰ্শ দিলে যে আপুনি দেশৰ প্ৰতিটো কথাৰ মানে খ্যাল ৰাখিব লাগে বা ধ্যান ৰাখিব লাগে যে ভাৰতীয় হকিম বা হাকিম বুলি কওঁ আমি, হাকিম বা বৈদ্যজনক আপুনি দেখুৱাওক, এনেকৈ পৰামৰ্শ দিলে। আৰু তেতিয়া লেখকে মনতে ভাবিলে, বৈদ্যকটো মই ইতিমধ্যে দেখুৱালোৱেই, এইবাৰ হাকিমকো দেখুওৱা যাওক। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंदर कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और सुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। तो लेखक ने हकीम साहब की यहाँ वर्णना दी है। तो কি কৈছে লেখকে যে हकीम साहब যেতিয়া আহিল, যদিও মই কৈছে यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, যদিও মই নিজৰ বেমাৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বা মোৰ নিজৰ যি অসুবিধা হৈছে বা মোৰ যি মই কষ্ট ভুগি আছোঁ সেই বিষয়েহে মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও মই হাকিম সাহাবৰ পোচাক, যি সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে, বা যি থকাৰ ঢং, সেইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিছোঁ। কি কৈছে, সেই সময়ত বেছি ঠাণ্ডা নাছিল, বানাৰসত কি হয় বেছি ঠাণ্ডা নহয়, আৰু সেইকাৰণে অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈছিল বাবে কি হৈছে গৰম কাপোৰ পিন্ধাৰ সময় আহিছিল। কিন্তু হাকিম সাহাবে চিকনৰ মানে এটা বন্দাৰ কুৰ্তা, মানে বন্ধ কুৰ্তা পিন্ধিছে, আৰু মূৰত এটা বানাৰসী টুপি আৰু পাজামা পিন্ধিছে। এনেকুৱা লাগিছে চুৰিদাৰ পাজামা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু পাজামাটো কেনেকুৱা হ'ল, দৰ্জীজন নিশ্চয় হত আছিল আৰু কাপোৰ চুৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে গোটেইখিনি লগাই দিছে। দেখিবলৈ মানে বেলেগ এটা ঢং হৈছে, মানে চুৰিদাৰ পাজামা হোৱা নাই, আৰু হয়তো দৰ্জীজনে কাপোৰ চুৰ কৰি মানে ঢিলি মোহৰি হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু বেলেগ এটা ৰূপ লৈছে, দৰ্জীজনে কাপোৰ চুৰ কৰিছে বা এলাহ কৰিছে। জোতা কামদাৰ দিল্লীৱালা থা, জোতাযোৰ কেনেকুৱা আছিল, গুণা খটুৱা দিল্লীৰ। हकीम साहब पतले दुबले
इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांटती है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। এটা কি কৈছে যে হাকিম সাহাবৰ যেটো বৰ্ণনা দিছে সাজ পোছাকৰ বৰ্ণনা আৰু কৈছে যে তেওঁ ইমানেই পাতল বা দুৰ্বল ধৰণৰ আছিল বা পাতল আছিল ক্ষীণ মিন আছিল কি কৈছে এনেকুৱা ধৰণে লাগিছিল যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্বাস্থ্যটো মানে বেমাৰীৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছে এনেকুৱা বা বেমাৰীৰ মাজতে ভাগ কৰি দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছিল আৰু তেওঁ মানে যি আদব কায়দা বা তেওঁৰ যি কোমলতা মাতত যি কোমলতা এইবিলাকক দেখি কেনেকুৱা লাগিছিল তেওঁ মানে বানাৰসত থাকে কিন্তু লখনৌত থকাৰ দৰে মানে এটা ঢঙত থাকে। आते ही मैंने सलाम किया जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है। मैंने कहा मर रहा हूँ बस आपका ही इंतजार था अब यह जिंदगी आपकी ही हाथों में है। तो आते ही लेखक ने हकीम साहब को सलाम किए আহিয়ে তেওঁ সালাম দিলে আৰু তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি মিচিকে হাঁহি মাৰি ক'লে যে আপোনাৰ কেনেকুৱা বা আপোনাৰ মনৰ অৱস্থা কি মিজাজ মানে মনৰ অৱস্থা। মই ক'লো মৰি আছো আপোনাৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰি আছো আৰু এতিয়া মোৰ জীৱনটো আপোনাৰ হাততে। हकीम साहब ने कहा यार आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो जाए। भली ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है मरे आपके दुश्मन नफ्स तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनंद फानन में दर्द रखू सक्कर होगा। तो हकीम साहबे কি ক'লে যে বন্ধু আপুনি এনেকুৱা ধৰণে কথা কৈছে যেন আপোনাৰ জীৱনটো বৰ বিৰক্ত আপুনি বিৰক্ত অনুভৱ কৰিছে বা জীৱনৰ পৰা আপুনি বিৰক্তি পাইছে এনেকুৱা ধেমালি গুপ্তগু মানে ধেমালি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ধেমালি কোনোবাই কৰেনে এনেধৰণে তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ মানে শত্ৰুহে মৰিব নাৰীটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু কৈছে যে খুদাৰ দুত বা আল্লাহৰ দুতে বিচাৰিলে নিশ্চয় সোনকালে অতি সোনকালে আপোনাৰ কি হ'ব বিষ নাইকিয়া হৈ যাব। मैंने कहा अब आपकी दुआ है आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इसलिए आपको तकलीफ दी गई। লুকমান এজন প্ৰসিদ্ধ হকিম সাহাবৰ নাম বা হাকিমৰ নাম লুকমানৰ দৰে আপোনাৰ নাম যিহেতু বিখ্যাত আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে মই আপোনাক সেইকাৰণে কষ্ট দিলোঁ লেখকে সেইদৰে কৈছে। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी फिर बोले मैं नुस्खा लिखे देता हूँ इसे इस वक्त आप पीजिए इंशाअल्लाह जरूर शिफा करी होगी। तो তেতিয়া কি হৈছে 10 মিনিট সময় তেওঁ নাৰী পৰীক্ষা কৰিছে আৰু কৈছে যে মই লিখি দিছোঁ দৱা বা দৰৱ লিখি দিছোঁ আপুনি খাওক নিশ্চয় আল্লাহ বিচাৰিলে আপুনি জৰুৰ উপকৃত হ'ব। हकीम साहब चलने को तैयार हुए उठे उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। तो हकीम साहब ने जाते जाते क्या कहा मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। तो हकीम साहबे কি ক'লে যাবৰ সময়ত কৈ থৈ গ'ল যে আজিকালি আপুনি এটা কথাত গুৰুত্ব দিব যে আজিকালি কিছুমান দৰৱ বৰ পুৰণা ৰাখে কিন্তু মোৰ তাত নতুন বা সতেজ দৰৱ পোৱা যায়। दर्द फिर कम हो चला परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ कोई एक्सरे का नाम लेता था किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं आप होम्योपैथी इलाज की शुरू कीजिए देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है जादू का। तो लेखक जब बीमार होता है तो उसका क्या होता है तो हकीम साहब आते हैं और क्या होता है हकीम साहब जो दवाइयाँ देते हैं उसे पीकर थोड़ा सा दर्द कम होता है। তাৰপিছত কি হয় তেওঁৰ বিষটো অকণমান কমি যায় কিন্তু তেওঁৰ দুৰ্বলতাটো বাঢ়ি যায় আৰু কি কৈছে কেতিয়াবা বিষটো ইমান জোৰেৰে আহি যায় যে ক'বই নোৱাৰি আৰু ঘৰৰ মানুহে কি কৰিছে এই বিষয়টো লৈ যিহেতু ইমান দিন লেখক বেমাৰ ভুগি আছে বিশেষ চিন্তা হ'বলৈ ধৰিছে লগতে তেওঁৰো আৰু কোনোবাই কৈছে कोई कहता था कि लखनऊ जाओ कोई एक्सरे का नाम लेता था কোনোবাই এক্সৰে কৰাবলৈ কৈছে কোনোবাই লখনৌলৈ যাবলৈ কৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু কি হৈছে
আৰু কোনোবাই জল চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু এজন শুভাকাংক্ষীয়ে কি কৈছে তেতিয়া যে হোমিওপেথিৰ আপুনি চিকিৎসা কৰক, যে সৰু সৰু যিবিলাক গুটি নিচিনা গলি বুলি কৈছে, গলিবিলাকত কি আছে যাদু আছে বুলি, যাদুৰ দৰে কাম কৰে বুলি কৈছে হোমিওপেথিৰ যিবিলাক দৰৱ। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। तो प्रकृति चिकित्सকৰ কথাও কোনোবা এজনে কৈছে যে प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट में लेकर प्रकृति चिकित्सा বুলি এটা আছে। আৰু কৈছে যে আপুনি যদি মানে তিতা মাটি পেটত লেপি শুই থাকে বা ৰ'দত বহি থাকে তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ নিশ্চয় পেটৰ এই বেমাৰ ভাল হ'ব। 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है। সেইখিনি সময়তে তেওঁ শহুৰেকেও কি লৈ আহিছে, এজন ডাক্তৰ লৈ আহিছে। ডাক্তৰজনে তেওঁক কৈছে যে আপুনি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ, নিশ্চয় বুদ্ধিয়ক মানুহ বা বুজন মানুহ। আৰু কি কৈছে তেতিয়া লেখকে ব্যংগ কৰি সেইখিনিতে কৈ উঠিছে যে समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। যদি মই কি বুদ্ধিয়ক নহ'লোহেঁতেন বা বুজন মানুহ নহ'লোহেঁতেন আপোনাকনো কিয় মাতিলোহেঁতেন। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने प्रेम से देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी। बोली, बेटा, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा होता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी, देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। तो সেইখিনি সময়তে কি হ'ল, লেখকৰ नानी की मौसी বুলি কৈছে, এনায়কৰ মাহীয়েক আহিল। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, তেওঁ বৰ মৰমেৰে চালে আৰু ক'লে, কি বুলি ক'লে, মইতো প্ৰথমেই জানিছিলোঁ যে এইটো উপৰুৱা খেল। বা এই উপৰুৱা খেলটোনো কি, যেতিয়া লেখকে জানিব বিচাৰিলে তেতিয়া ক'লে যে सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता বা लिखा नहीं होता। तो बात यह कि किसी चुड़ैल का फसाद है, কোনো ডাইনীৰ উপদ্ৰৱ বুলি কৈছে। আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্ত্ৰী আৰু মাকৰ ফালে চাই কৈছে, মানুহগৰাকী কি বুলি কৈছে যে চোৱাচোন তেওঁৰ চকুৰ নোমবিলাক কেনেকৈ থিয় হৈ গৈছে, নিশ্চয় ডাইনীয়ে কিবা এটা অপকাৰ কৰিছে, এনেধৰণে কৈছে। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है। जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की क्या आशा करता, पर बीच बीच दवा भी होती जाती थी। तो কি কৈছে যে যেতিয়া নানিয়েকৰ বা এনায়কৰ মাহীয়েকে তেওঁ পৰামৰ্শ দিলেহি বুলি, তেতিয়া কি কৈছে, তেওঁ ব্যংগ কৰি পুনৰ কৈছে যে ডাক্তৰটো মোৰ পিছত লাগিয়ে আছে, এবাৰ মই ডাইনীনো কোন কথা, এনেধৰণে কৈছে। আৰু কৈছে তেতিয়া পত্নীয়ে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছে যে আপুনি মানুহৰ কথাবিলাক মানি লোৱাটোৱেই ভাল, এনেদৰে পৰামৰ্শ দিছে। আৰু কিন্তু লেখকৰ কি কৈছে, বিষৰ কোনো মানে কম হোৱা নাই, মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই তেওঁৰ বেমাৰত। আৰু কি হৈছে, ওজাৰ পৰানো কি চিকিৎসা কৰাম, এনেধৰণে তেওঁ ভাবিছে। আৰু কিন্তু মাজে মাজে তেওঁ দৰৱো খাই আছে বা সেৱন কৰিছে। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। तो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है, वहाँ सभी साधन है। तो लेखक ने क्या निश्चय किया, लेखक ने लखनऊ जाने का निश्चय किया, वहाँ सभी साधन है, उन्नत चिकित्सा के लिए सभी साधन वहाँ पाया जाता है लखनऊ में। তাৰমানে লক্ষ্ণৌত উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ কাৰণে সকলো সুবিধা আছে আৰু সেইকাৰণে
लेखके की करिले लखनऊ जोৱাৰ सिद्धांत लले। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह नहीं, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। तो সকলো আয়োজন হৈছিল লখনৌ যোৱাৰ। তেতিয়া ঠিক সেইখিনি সময়তে আকৌ এজন মানুহে কাক লৈ আহিলে বুলি কৈছে, এজন ডাক্তৰক লৈ আহিল। আৰু তেওঁ যেতিয়া মুখখন চাব বিচাৰিলে তেতিয়া লেখকে পুনৰ ব্যংগ কৰি কৈছে যে মুখ চাই জিভা চাই সকলো চাব পাৰে। আৰু তেওঁ খুব জোৰেৰে হাঁহিলে। সেই হাঁহি কেৱল ক'ত শুনা যায়, কবি সন্মিলনত যেতিয়া একো ঢং নোহোৱা কবিতা এটা পাঠ কৰা হয় সেইখিনি সময়তে তেনে হাঁহি শুনা যায়। তেওঁ आश्चर्य होल, लेखक आश्चर्य हुई से कैसे। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यहाँ सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। तो তেতিয়া কি হল, যেতিয়া মুখখন চাব বিচাৰিলে ডাক্তৰজনে ইমান জোৰকে হাঁহিলে আৰু ক'লে, কি বুলি ক'লে যে তোমাৰ পায়ৰিয়াহে হৈছে। আৰু তেতিয়া কি হৈছে, তাৰে বিষ তোমাৰ পেটত গৈ গৈ কি মানে বিষৰ উৎস হৈ পৰিছে। আৰু তেতিয়া তেওঁ পৰামৰ্শ বিচাৰি তেতিয়া ডাক্তৰজনে কি বুলি ক'লে যে দাঁতখিনিয়ে উঘালি পেলোৱা দন্ত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে। मैंने अपने मन में कहा, आपको या तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई। কি কৈছে যে আপোনাৰটো এই কথাষাৰ কওঁতে কষ্টই নহল। गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती, যেন দাঁতটো বা দাঁত উঘালিলে একো যেন কষ্টই নহয় বা একো কঠিনাই মানে কষ্ট নহয় বুলি লেখকে কৈছে। खैर रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलाया कि 3 रुपए की फी दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 4 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट का दर्द के साथ साथ छिड़ में भी चक्कर आने लगा। तो लेखके কি কৈছে যে যেতিয়া ডাক্তৰজনে পৰামৰ্শ দিলে আপোনাৰ পায়ৰিয়া হৈছে আৰু আপুনি এজন দন্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বা দেখক আৰু দাঁতবিলাক উলিয়াই পেলাওক। আৰু তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে ঠিকেই কৈছে, তেওঁ এইটো মানি লওঁ মই। আৰু দন্ত চিকিৎসকক যেতিয়া পুছতাছ কৰা হ'ল বা সোধা পোছা কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে 3 रुपया লাগিব বা 3 টকা লাগিব দাঁত মানে উঘালিবলৈ। আকৌ প্ৰতিটো দাঁতৰ কাৰণে বা সম্পূৰ্ণ গোটেই মুঠ দাঁতখিনিৰ কাৰণে লাগিব 96 টকা। আকৌ তাৰ মাজৰ এজন 96 টকাৰ মানে 6 টকা তেওঁ এৰি দিব আৰু দাঁত কি কৰিব লাগিব, আকৌ লগাবলৈ হ'লে 150 টকা বেলেগকৈ লাগিব। এই সকলোবিলাক শুনি লেখকৰ পেটৰ বিষৰ লগতে মূৰৰ ঘূৰণিও হ'বলৈ ধৰিলে বুলি কৈছে। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ इतना और खर्च करो। এতিয়া কি কৈছে, যদি মোৰ দেহাটো ঠিকেই থাকে সকলো ঠিকেই থাকিব, সেইকাৰণে এবাৰ এইখিনি পইচাও খৰচ কৰা যাওক। श्रीमती से मैंने रुपये मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नोचवा डालो, आंखें निकलवा डालो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद कराया? तो শেষত কি হ'ল, লেখকে যেতিয়া শ্ৰীমতীক বা নিজৰ পত্নীক পইচা বিচাৰিলে তেতিয়া তেওঁ সকলো কথা শুনিলে আৰু ক'লে, কি বুলি ক'লে, তোমাৰ বুদ্ধি ক'ৰবাত গুচি গৈছে নেকি? যে আজি কোনোবা এজন ডাক্তৰে ক'ব দাঁত উঘালি পেলোৱা, কাইলৈ কোনোবা এজনে ক'ব তোমাক চুলিখিনিকে কাটি পেলোৱা বা চুলি ফুৰাই পেলোৱা, পৰহিলৈ ক'ব যে তোমাৰ নাকটোকে কাটি পেলোৱা। তুমি এইবিলাক কৰি থাকিবা নেকি? তুমি কোনোবাই ক'ব আকৌ চকুটো উঘালি পেলোৱা, তুমি সেইবিলাক কৰি থাকিবা নেকি? এইবিলাক সকলো অদৰকাৰী কথা। আৰু তুমি খানা মানে ভালকৈ খোৱা আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত তুমি ঠিক হৈ যাবা। তেতিয়া শেষত লেখকে পুনৰ ব্যংগ কৰি কৈছে, কি বুলি কৈছে, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद कराए?
ইমান চিকিৎসা কৰিলোঁ মই, আৰু তোমাৰ ওচৰত পৰামৰ্শ আছিলে অতদিনে তুমি মোক কিয় নকলা, इमान पैसा क्यों खर्च करवाना। तो विद्यार्थियों, इस बात से हमें भारत के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी मिली, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक आदि। तो साथ साथ हमें जल चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा के बारे में भी पता चला, और इन सभी चिकित्सा पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा करवाया, लेकिन उसकी पेट दर्द की कमी नहीं हुई और उसकी बीमारी बढ़ती चली। और विभिन्न लोगों ने उनको परामर्श, सगे संबंधी मित्रों ने उन्हें परामर्श भी दिया था कि ये करो वो करो, फिर भी लेखक का पेट दर्द का कम ना हुआ। तो अंत में उसकी पत्नी की सलाह से उसने खाना ठीक से खाया और उसकी तंदुरुस्ती 15 दिन में आ जाती है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ पाठ में से तुम लोगों को बहुत सी जानकारी मिली होगी। लेखक ने यहाँ व्यंग्यात्मक दृष्टि से इस लेख को प्रस्तुत करके हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे भारत में विभिन्न पद्धतियों से चिकित्सा की जाती है, और इन चिकित्सा पद्धतियों में भी क्या क्या होता है, हकीम हो या वैद्य हो या दंत चिकित्सक हो, क्या क्या कहता है और किस तरह से चिकित्सा की जाती है, ऐसी बातों की जानकारी मिली। आशा करती हूँ तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो अगली पाठ लेकर मैं तुम लोगों के बीच फिर आऊँगी। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।